Good morning, friend. Today we are going to study the deep water from 11th 12th standard Flamingo. This chapter is written by William Douglas. In this chapter, we learn that how he overcome the fear from his childhood. And this chapter is taken from his book Men and Mountains. The author tells us about how he overcome deep-rooted fear of water. Even we learn the author developed fear of water following two very dreadful incidents. In this first one, when he is a 4 year old, at that time, wave knock him down, and similarly in second one, he is 11 year of the age, someone throws him in deep water in the end of the pool and almost drowns. Thus, having gone through such scary experiences, he fears water deeply. However, he does work really hard to overcome it. Finally, we learn about measures he takes to overcome this fear. Moreover, he accomplished in overcoming the fear and give us all great lesson of determination and willpower. So let us go to the deep study of Deep Water written by William Douglas. Deep Water is about the writer's journey of overcoming fear of water, which is deeply rooted in him since his childhood. Author started fearing water since the age of 4. It started when he was visiting California with his father. He visited a beach where wave knocked him down and swept over him. This terrified the author. Although father laughs at this knowing it was no danger. However, this experience terrifies him and develop a fear of water. After that, when author is 11-year-old, he experienced another incident which became very strong in his fear. Right? He is at swimming pool in Akima trying to learn swimming. On the one fine day, someone very fat person, very strong person decide to pull dangerous prank. He pushed him in deep end of the pool, which frightened the author. He reaches 9 feet into water and start struggling desperately to hold on to something. Moreover, he cry for help, but he start feeling paralyzed, and only his heart was moving now. Thus gives up and readies to himself to die. But he wakes up at the side of pool. However, terror he experienced while drowning never goes away. It continued to haunt him for many years, even spoiled his future expeditions concerning coining, swimming, fishing, and more. It disturbed his so many activities. He even visited Marine Lake, Colombia, New Hampshire, and more, but is not able to enjoy it. Thus, means that is why he decided to overcome this fear by hook or by crook. He enrolls himself in swimming class, tries to learn from instructor. Instructor teach him many tips, tricks for swimming. He begins with inhaling and exhaling part. Then he practices it for many weeks. Further, he moves on kicking the legs on side of pool. Finally, he combines all this with the final move of swimming. Although the author knows how to swim, he is still terrified of water. That is why, in order to get rid of fear, he decided to confront, to face it boldly. He mocked it by thinking, what can it really do? Consequently, he plunged into the water, and to his surprise, his fear goes away. He faced it in many places and at last managed to conquer it and managed to overcome it. So, conclusion of this story, deep water summary. We learn if we are determined enough and have courage, we can overcome any fear that comes our way without letting fear overpower us. तो दोस्तों इस लेसन में जो लेखक है वो हमें अपने खुद के बचपन के पानी से जुड़े हुए अनुभव से
कैसे डरते हैं उस बारे में बताते हैं। ये लेसन मैन और माउंटेन्स से लिया गया है। लेखक हमें इस बारे में बताते कि वह पानी के गहरे जड़ को कैसे खत्म करता है। हमें सिखाते हैं कि लेखक दो बहुत भयानक घटनाओं के बाद पानी से डरते थे। पहले वो जब 4 साल के थे, जब एक लहर उसे नीचे गिराती है, और उसी दूसरे एग्जाम्पल में जब वो 11 साल के थे, तो एक किसी इंसान ने या लड़के ने उन्हें पानी में के गहरे अंत में फेंक देता है और लगभग डूब जाता है। इस प्रकार इस तरह डरावने अनुभवों से गुजरने के बाद वह पानी के गहराई से डरते हैं। हालांकि वह इससे उभरने के लिए वास्तविक में कड़ी मेहनत करता है। अंत में हम इस भय को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में सीखते हैं। इसके अलावा वह डर पर काबू पाने में मदद करता है और दृढ़ संकल्प इच्छा शक्ति के का एक बड़ा सबक देता है। तो आइए देखिए थोड़े गहराई में इस लेसन को। डीप वाटर के लेखक पानी के डर को काबू पाने की यात्रा के बारे में यहाँ पर बताते हैं, जो बचपन से ही उनमें निहित है। लेखक को 4 साल की उम्र से ही पानी से डर लगता है। यह तब शुरू होता है जब वो अपने पिता के साथ कैलिफोर्निया का दौरा करते। वह एक समुद्र की तट पर है जहां पर एक लाट लहर उसे नीचे गिरा देती है और उस पर झपटती है। यह लेखक को भयभीत करता है। हालांकि पिताजी यह जानकर हंसते हैं कि यह कोई खतरा नहीं है, लेकिन यह अनुभव उन्हें भयभीत करता है और पानी का डर पैदा करता है दोस्तों। उसके बाद जब लेखक 11 साल का होता है, वह और एक घटना का अनुभव करता है जो उसे डर को बढ़ाती है। राइट, वह याकिमा के एक स्विमिंग पूल में सीखने के लिए कोशिश करते हैं। एक दिन एक बदमाश लड़के ने एक खतरनाक शरारत खींचने का फैसला करता है। वह उसे पुल के गहरे अंत में ढकेलता है, जो लेखक को डराता है। वह पानी में 9 फीट तक पहुंच जाता है और किसी चीज को पकड़ने के लिए सख्त संघर्ष शुरू करता है। वह मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वह खुद लकवाग्रस्त महसूस करता है और केवल दिल ही हिल रहा है ऐसा उसे लगता है। इस प्रकार वो छोड़ देता है और खुद को मरने के लिए पड़ता है, लेकिन पुल के किनारे उठता है। डूबते समय वह जिसे आंतक का अनुभव करता है वह कभी दूर नहीं होता है। यह कई वर्षों तक उसे परेशान करता है। यहाँ तक कैनोन तैराकी मछली पकड़ने के लिए भी उन्हें तकलीफ होती थी और भविष्य में ऐसे अभियानों को खराब कर रही थी कि जो वहां पर उनको इंटरेस्ट था। वह यहाँ तक कि समुद्री झीलों, कोलंबिया, न्यू हैम्पशायर और बहुत सारे दौरे पर जाते हैं, लेकिन इसका आनंद नहीं ले पाते क्योंकि उनको बचपन से डर है। इस प्रकार वह हक या बदमाश द्वारा इस डर को दूर करने का फैसला करते हैं। वह खुद को तैराकी मतलब इंस्ट्रक्टर के क्लास में शामिल हो जाती है और प्रशिक्षक से सीखने की कोशिश करता है। प्रशिक्षक उन्हें कई सारी टिप्स देता है, ट्रिक्स देता है। वहां सांस लेने छोड़ने के हिस्से में से शुरुआत होती है। कई हफ्तों तक इसका अभ्यास भी करते हैं। इसके अलावा वह पुल के किनारे पैरों को लात मारते आगे बढ़ते हैं। अंत में वह तैराकी के अंतिम कदम के साथ इस सब को जोड़ती है। हालांकि लेखक जानता है कि कैसे तैरना है, ये भी वो जानते हैं, फिर भी वो पानी से डरते हैं। इस प्रकार भय से छुटकारा पाने के लिए वह एक सामना करने का फैसला करता है, वो भी कड़ी तरीके से। यह सोचकर उसका मजाक उड़ता है कि वास्तव में क्या कर सकता है। वो अपने आप से पूछता है। नतीजन वह पानी में डूब जाता है और उसके आश्चर्य के लिए उसका डर दूर हो जाता है और उन्हें कई स्थानों पर इसका सामना किया और अंत में इसे जीतने के लिए प्रबंधन करता है। और इस प्रैक्टिस के बाद उन्हें पता चलता है कि उन्होंने डर पे विजय हासिल कर ली है। तो संक्षिप्त में कहते हैं कि हमें सीखने को मिलता है, यदि हम पर्याप्त रूप से दृढ़ और साहस रखते हैं तो हम किसी भी भय को दूर कर सकते हैं जो हमारे डर को
खत्म किए बिना हमारे रास्ते में आता है। राइट, तो यही यहाँ पर राइटर कहना चाहते हैं, जो उनके बचपन में जो डर बैठा था और उनके जवानी में जब उन्होंने प्रैक्टिस किया, तो हम दूसरी तरफ कहते प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो यहाँ पर भी वही कहीं ना कहीं उदाहरण हमें दिखाई देता है दोस्तों। तो इस तरह से लेसन पढ़िए डीप वाटर, और आपको बहुत इंजॉय करोगे, और मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों, तो देखिए। ओके, चलो, थैंक यू।